سی پیک کے 10 سال مکمل، کنونشن سینٹر میں تقریب، پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں دونوں ملکوں کی قیادت کی شرکت۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ نے بھی سی پیک کو فلیگ شپ منصوبہ قرار دیا، کہا منصوبہ پاکستان اور چین کی دوستی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ سی پیک سے خطے میں سماجی ترقی کا دور شروع ہوا۔ اربن ریلوے، سڑکوں اور فائبر آپٹکس سمیت مختلف منصوبے مکمل ہو چکے۔ انڈسٹری، کلچر اور صحت کے شعبوں میں مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے سی پیک کے تحت 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی، بیشتر منصوبے وقت سے پہلے مکمل کیے۔ سی پیک منصوبوں سے توانائی بحران کا خاتمہ ہوا۔ موجودہ حکومت گوادر کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ کی ملاقات، پاک چین تعلقات، سی پیک اور دو طرفہ اقتصادی و مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں مستقل تعاون کی یقین دہانی کرائی، دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک میں توسیع پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین تباہ کن سیلاب اور موجودہ معاشی چیلنجز میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ چینی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ کے لیے ہلال پاکستان کا اعزاز۔ ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے ہی لینفنگ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وزراء، سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان زرعی، صنعتی اور مواصلاتی شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 2 سال بعد 48,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر 957 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس 48,034 پر بند ہوا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 291 روپے پر مستحکم رہا۔ سونا 2500 روپے سستا، فی تولہ قیمت 2,22,200 روپے ہو گئی۔ پالیسی ریٹ جو تھا، جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا۔ جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا، اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا۔ شرح سود 22% پر برقرار، نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% ہی رہے گی۔ سی پی آئی انفلیشن 38% سے کم ہو کر 29.4% پر آ گیا۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 20 سے 22% رہنے کی توقع ہے۔ آئندہ مالی سال تک مہنگائی 5 سے 6% پر آ جائے گی۔ آئندہ سال شرح نمو 2 سے 3% رہنے کا امکان ہے۔ ادائیگیوں کے بعد زر مبادلہ ذخائر 8.2 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، معیشت جلد مستحکم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا، جو خطے کی ترقی کا ضامن ہے۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا کی برانچ کا افتتاح، چینی کرنسی میں لین دین کیا جا سکے گا۔ پاکستان منرل سمٹ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ بین الاقوامی مندوبین اور سرمایہ کار شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی اور آرمی چیف گیسٹ آف آنر ہوں گے۔ ریکارڈک منصوبے کی آئندہ سال تکمیل اور 2028 تک کان کنی کے آغاز کا ہدف، اعلیٰ معیار کا تانبا اور سونا نکلے گا۔ 7,500 افراد کو روزگار ملے گا۔ مصدق ملک کہتے ہیں پاکستان میں معدنیات کی کل مالیت کا اندازہ 6 ٹریلین ڈالر سے زائد لگایا گیا۔ اپنی معدنیات کی مٹی نہیں بلکہ ترقی بیچیں گے۔ ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ میں بدلیں گے۔ سرمایہ کاری سے بلوچستان کی قسمت بدلے گی۔
सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने बाजोड़ धमाके पर इज़हार ताज़ियत किया। शहदा के बुलंद दर्जात और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और जाहिद अकरम दुर्रानी भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी फजलुर रहमान से मुलाकात। बाजोड़ धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास के आगाज़ में ऐवान में बाजोड़ धमाके में जाँ बहक अफराद की साल सवात के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। स्पीकर परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत धमाके में मुलव्वस अनासर का सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाए। तोशाखाना फौजदारी केस अदालत ने चेयरमैन PTI को कल सुबह 9 बजे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI के आज केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन PTI को आखिरी मोहलत दी थी। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन PTI और उनके वकला अदालत को मजीद मायूस करना चाहते थे। अदालत फेयर ट्रायल को मद्देनजर रखते हुए आखिरी मोहलत दे रही है। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस रुकवाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेशन कोर्ट में केस में दफा 342 का बयान रिकॉर्ड करने की कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील दायर की। इस्तदा की हाई कोर्ट की जानिब से अदालती दायरे इख्तियार पर हतमी फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत तारड़ कहते हैं कि PTI तोशाखाना केस को तकनीकी बुनियादों पर ताख़ीर का शिकार कर रही है। आला अदलिया क्यों इन मामलात में मुदाखलत करती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस पर इल्ज़ाम तराशी। शुएब शाहीन ने तोशाखाना केस को फिक्स मैच करार दे दिया। कहा कि ये चेयरमैन PTI को किसी न किसी तरह सजा देकर नाअहल करना चाहते हैं। PTI की क़यादत को दीवार से लगाने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन जस्टिस फायजीसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी गई। चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। वकील रियाज राही ने जस्टिस फायजीसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एवल वली खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से BAP के रहनुमाओं की मुलाकात का भी इम्कान। बाज़ सियासी रहनुमाओं की बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुतवक्के। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। 30% नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ की वापसी पर दीगर पार्टियों के अफराद भी नून लीग में शामिल हो गए। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान भी मुतवक्के है। निगरान हुकूमत के लिए हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। तमाम जमातों ने किसी सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर करने पर इत्तेफाक कर लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में होगा। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मुतहरिक। बुध से अपोजिशन जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। राजा रियाज कहते हैं, कोशिश है निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुजव्वज़ा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक गुफ्तगू। सूबाई वज़रा मिठा खान काकड़ और नूर मोहम्मद दुम्मड़ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तरदीद कर दी। सूबाई वजीर तुरकमल का BAP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। शुरका ने कहा कि BAP 5 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर एक बार फिर सुर्खरू होगी।
इलेक्शन कमीशन की सियासी वाबस्तगी वाले निगरान वज़रा को फौरी हटाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा चंद वज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी को सियासी वाबस्तगी पर भर्ती किया गया। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर भी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। निगरान वज़ीर शाहिद खटक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इस्तीफा दिया। निगरान वज़ीर आला अपनी काबीना को कम से कम करें। दूसरी जानिब इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को नोटिस। एबटाबाद में इंतखाबी अमल में सरगर्मियों पर नोटिस जारी किया गया। एमक्यूएम रहनुमाओं के वफाक से गिले शिकवे, मर्दमशुमारी पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतालबे को एहतजाज में तब्दील न होने दें। कराची की आबादी को ठीक से गिना जाए। 3 करोड़ से कम आबादी कबूल नहीं, न ही आधी मर्दमशुमारी से इंतखाबात हो सकते हैं। सही गिनती करके नई हल्का बंदियां की जाएं और फिर इंतखाबात कराए जाएं। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। एंटी करप्शन हुकाम ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची वालों को मयारी सफरी सहूलत की फराहमी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। मलीर कैंट चेक पोस्ट गेट नंबर 5 से 18 किलोमीटर का बस रूट होगा। इलेक्ट्रिक बस डालमिया जेल चौरंगी एम ए जिना रोड से नुमाइश चौरंगी तक जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। कहा सी पैक के इब्तिदाई मुआहदे साबिक सदर जरदारी के दौर में हुए। एक भी मंसूबा कर्ज की बुनियाद पर नहीं बनना था। आसिफ जरदारी ने बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर का तस्वुर दिया था। महंगी बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी 23 रुपए 86 पैसे महंगी। फी किलो कीमत 201 रुपए 15 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 2373 रुपए का हो गया। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की पुरानी कीमत 2092 रुपए 13 पैसे थी। हैदराबाद में डेयरी फार्मर्स की मनमानी। दूध की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। 20 रुपए इजाफे के बाद फी लीटर दूध का रेट 220 रुपए तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों के अलग अलग निर्ख। दुकानदार मनमानी कीमत वसूल करने लगे।